A very pleasant good morning, dear students. I am your English teacher Anil, and today I'm going to teach you the very first poem of Beehive. The name of this particular poem is The Road Not Taken. This particular poem is written by Robert Frost. The central idea of this particular poem is importance of decision making. We should be wise enough while making decision in our life, because whatever the decision we make, our entire life will be affected with that particular decision. Because if we make a positive decision, a right or a good decision, our life will be fruitful. And if we make a wrong decision, our life can be hell. Our life can have a lot of problems. So therefore, we should be wise enough while making decision in our life. So this is the central idea of this particular poem. So let us start this particular poem in detail. As I told you, this particular poem is written by Robert Frost. So he was born in 26 March 1874 and he died in 29 January 1963. He was an American poet, right? And he is well known for his realistic means real writing. So it means that his writings were, mostly realistic. Real ideas were there of rural life, village life, and his use of American informal slang speech. तो जनरली जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो राइटिंग रहा बहुत रियलिस्टिक रहा है, रियल रहा है, रूरल लाइफ के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ लिखा है। अमेरिकन स्लैंग जो होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, उसको उसने अपनी राइटिंग्स में बहुत ज्यादा यूज किया है। फ्रॉस्ट हैज ऑफन बीन कोटेड बाय अदर पीपल। फ्रॉस्ट हैज बीन कोटेड बाय अदर पीपल। जनरली बहुत सारे जो पोइट होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, फ्रॉस्ट की जो कोटेशन, फ्रॉस्ट की जो बातें उनको अक्सर मतलब वो कोट करते हैं। He was honored. Honored means like he was awarded often during his lifetime. उनको बहुत बार सम्मान मिला है as a poet, receiving the Pulitzer Prize for Poetry. ये Pulitzer जो prize होता है ये poetry के लिए मिलता है, highest honor award है for a poet, right? So Robert Frost is a rich poet, like it means he has been awarded with so many prizes, and he is one of the greatest poets ever existed in the history. So let us start with his poem, which is Raw Not Taken. चलो हम इसके एक poem से start करते हैं, Raw Not Taken. So before we proceed, so introduction of the poem. सबसे पहले हम introduction of the poem देखते हैं क्या लिखा है introduction के अंदर. Give me 1 second. Yes, let us start. देखो, in the poem, the Raw Not Taken, the road symbolizes our life. Symbolize means it presents our life. Okay, it represents our life. Means road जो है, road not taken, ये हमारी life को symbolize करती है, life की प्रतीक है. The poet says, Robert Frost says that, Robert Frost का कहना है that the path we don't choose in our life means हमारे पास क्या है, हमारे पास दो रास्ते हैं, right? मान लो ये दो रास्ते इधर जा रहे हैं, हम इस जंक्शन पे खड़े हैं, and we have two paths. Suppose हम A path को choose कर रहे थे, B को हमने छोड़ दिया है. So the path we have, see, the path that we don't choose in our life, जो रास्ता हम अपनी जिंदगी में नहीं चुनते हैं, the wrong not taken, क्योंकि यहाँ पे मैंने B path को नहीं चुना है. He describes his feelings. He describes his feelings about the choice that he had left in the past. वो बताना चाहता है कि मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्म में वो ये बताना चाहता है कि वो चॉइस जब कभी उसने उसको छोड़ा था, like when he had two choices in his life but he chose one and he left another. So he's talking about the choice which he left in past, what sort of effect it created in his life. जो चॉइस उन्होंने छोड़ा था उसने किस तरह का इफेक्ट उसकी जिंदगी में लेकर आए, तो उसके बारे में पोइट यहाँ पे बताना चाहता है. The path we have chosen, जो path हमने choose किया है, decides our future or destination. Because as I told you, whatever the decision we make in our life, our entire life will depend on that particular decision. हमारा destination क्या होगा, हमारा future क्या होगा, उस एक decision के ऊपर depend करता है. The important message is that the poet wants to give us that the choice that we make has an impact on our future. Obvious, whatever the decision you make in your life, our entire life will depend on that particular decision. और उस
डिसीजन का हमारी पूरी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है. सो दैट्स व्हाट एक्चुअली वी शुड बी वाइज इनफ व्हाइल मेकिंग अ चॉइस और व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन इन अ लाइफ. हमें बिल्कुल वाइज होना चाहिए, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए जब हम एक डिसीजन लेते हैं जिंदगी के अंदर. इफ वी मेक अ रॉन्ग डिसीजन, इफ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, अगर हमने एक रॉन्ग चॉइस ले ली, वी रिग्रेट, हम क्या करेंगे उसके लिए, रिग्रेट फील करेंगे, हमें दुख होगा उस बात के लिए, पश्चाताप होगा, बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट. एंड द मोमेंट वी हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू undo it. उसको undo नहीं किया जा सकता है, फिर पीछे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. So we must be wise while making choices, and therefore we must be wise while making choices in our life. और हमें क्या होना चाहिए, हमें बिल्कुल समझदारी के साथ काम लेना चाहिए जब हम अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी डिसीजन लेते हैं. So therefore we should understand the consequences, benefits, and all aspects of that particular choice whenever we make a decision in our life. तो उसके लिए, उससे पहले हमें उस पर्टिकुलर चॉइस के बारे में सब चीजें देखनी चाहिए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे, जिससे कि हम एक बेस्ट चॉइस को ले सके, जिससे हम एक बेस्ट डिसीजन को ले सके. राइट. सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया. इन शॉर्ट, इफ आई जस्ट tell you, the central idea of this particular poem is the importance of decision making in our life. Okay, so let us discuss stanza wise now. So the very first stanza is, now my dear student, Robert Frost is going through a jungle, a forest. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक जंगल से गुजर रहे हैं. two roads diverge in a yellow wood. Wood means, my dear student, jungle, right? Forest जिसको आप बोल सकते हैं. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहां से गुजर रहे हैं, फॉरेस्ट से जा रहे हैं. एंड he just came at a juncture. अभी वो कहां पे पहुंचते हैं, वो एक जंक्शन पे आ जाते हैं. जंक्शन का मतलब, अगर आप देखते हो, एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहां से दो रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं. Two roads diverged in a yellow wood. So my dear student, as yellow wood shows that it is the time period of autumn. ऑटम पतझड़ का टाइम है. ऑटम के अंदर क्या हो जाता है, ऑटम के अंदर आपका जो 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 ट्री है उसके जो लीव्स होते हैं वो येलोइश होने लग जाते हैं. तो once upon a time Robert Frost is going through the jungle, जंगल से जा रहे थे और अभी उसके सामने एक जंक्शन आ गया, where he is standing, and now he can see that two roads are diverged. दो रास्ते उसके सामने अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक रास्ता इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक रास्ता इस डायरेक्शन में जा रहा है. So he is standing and it shows that because the leaves of the trees are yellow, right? It shows that it's autumn season. और ये पतझड़ का मौसम है, autumn season की बात है. And sorry I could not travel both. And while standing in the juncture, जिस juncture के अंदर वो खड़े हैं, now it's very difficult for him to choose because he cannot travel the both ways. Being a single traveler, it's not possible he can travel both the ways. ऑब्वियसली बात है, एक रास्ते पे, एक जंक्शन पे खड़े हैं, अभी एक टाइम पे वो सिर्फ एक ही रास्ते को क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं. तो इस वजह से वो फील करते हैं, एंड सॉरी आई कैन नॉट ट्रेवल बोथ. उसके पास मतलब अब दो रास्ते हैं, एक ही रास्ता उनको चूज करना पड़ेगा, बिकॉज ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ. वो दोनों रास्तों को ट्रेवल नहीं कर सकते हैं. एंड बी अलोन ट्रेवलर, क्योंकि वो अकेले ट्रेवलर है, एक ही रास्ते में सिर्फ सिंगल चलने वाले इंसान है, तो एक ही रास्ते को चूज कर सकते हैं. लॉन्ग आई स्टूड एंड व्हाइल स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शन पे खड़े होकर, देखिए जंक्शन पे खड़े होकर, जिस उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, लॉन्ग आई स्टूड, ही केप्ट थिंकिंग, वो सोचने लग जाते हैं. देखो डाइवर्स का मीनिंग मैंने बताया अभी आपको, सेपरेटेड एंड टुक डिफरेंट डायरेक्शन, जो अभी बताया आपको. येलो वुड, वुड का मतलब जंगल हो गया, येलो मतलब हो गया आपका लाइक येलो मींस येलोइश हो गया, वुड का मतलब जंगल हो गया, जब लीव्स आपके येलोइश हो जाते हैं. And long I stood. Now he is standing at the juncture and he is looking at the diverged road and which way should he choose to travel. अब उसको इस बात को देखना है कि वो किस रास्ते पे चले, कि कौन सा रास्ता उसको चूज करना चाहिए. जस्ट इमेजिन, मान लो मैंने ये पाथ ए यूज कर लिया, ये पाथ बी यूज कर लिया. नाउ व्हाट रोड शुड ही ट्रेवल. अब उसके लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि कौन सा पाथ उनको चूज करना चाहिए. एंड ही इज लुकिंग एट द रोड एंड ही इज थिंकिंग अ लॉट, और वो काफी देर से, लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि उनको कौन सा रोड पे ट्रेवल करना चाहिए. एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड,
and in order to make his decision he is looking at the both ways. वो दोनों रास्तों की तरफ देख रहे हैं. As far as I could, he is looking at the road. देखो रोड की तरफ बिल्कुल डीप, मतलब अंदर की तरफ बिल्कुल दूर तक वो देखने की कोशिश कर रही हैं कि कौन सा रोड उनको चूज करना चाहिए. टू वेयर इट बैंड इन अंडरग्रोथ. देखो अंडरग्रोथ का मतलब हो गया dense forest. देखो dense गहरा, growth of the plants and bushes means the forest. So my dear student, generally in forest actually जो unwanted plants जो होते हैं वो उग जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो वहां पर ग्रो कर जाते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं अंडरग्रोथ बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? अंडरग्रोथ. और जहां तक मतलब वो जो अंडरग्रोथ है वो दोनों रोड के ऊपर जहां पे छोटे छोटे प्लांट्स है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अंडरग्रोथ है, उन वहां तक जितनी दूर तक वो देख पा रहे हैं उतनी दूर तक वो दोनों रास्तों को देखते हैं. नाउ ही इज थिंकिंग अ लॉट. नाउ ही इज इन अ confusion, he is in a dilemma, what road should he choose, because अभी वो dilemma के अंदर है, दुविधा के अंदर है, because it's not possible he can make one decision right now. Suddenly वो अपना decision नहीं ले सकते हैं, and it's not possible for him to travel both the ways, और वो दोनों रास्तों को भी travel नहीं कर सकते हैं. Now he has to make one decision, he has to make he has to choose one road on which he will travel. उनको चूज करना पड़ेगा कौन से रोड पे उनको ट्रेवल करना है. क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट का उनका एक्सप्लेनेशन हो गया. लेट्स मूव ऑन टू अ सेकंड स्टेंजा. देन टुक द अदर एज. देखो पहले वो रोड कौन से रोड को देखता है, वो सबसे पहले फर्स्ट रोड को देखता है जहां पर वो अंडरग्रोथ तक उसको दिखाई पड़ती है. फिर उसके बाद वो दूसरे रोड की तरफ देखता है, मतलब पहले वो रोड ए की तरफ देखते हैं, अब वो क्या करेंगे, देन टुक द अदर. फिर उसके बाद सेकंड जो रोड है उसकी तरफ देखने लग जाते हैं. एज फेयर. एज फेयर मींस जो पहले वाला रोड था उसी के तरह दूसरा रोड भी क्या है, फेयर है. फेयर इन द सेंस उतना ही मतलब अट्रैक्टिव उनको लगता है. जो पहला रोड उनको जिस तरीके से अच्छा लगता है, सिमिलर सेकंड रोड भी उनको उसी तरीके से अच्छा लगता है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. बेटर क्लेम. बेटर क्लेम मींस माय डियर स्टूडेंट मींस बेटर ऑप्शन. देखो फेयर का मतलब हो गया यहाँ पे एज गुड एज द अदर वन, यानी पहले रोड की तरह दूसरे वाला रोड भी अच्छा था. क्लेम का मतलब बेटर ऑप्शन. और जैसे वो सेकंड रोड की तरफ देखता है, सो इट सीम्स दैट एक्चुअली इट्स अ बेटर क्लेम. इट मींस द सेकंड रोड इज बेटर देन द फर्स्ट वन. उनको लगता हो सकता है कि फर्स्ट वाले से कहीं ज्यादा ये रोड हो, दूसरे नंबर का जो रोड है, सेकंड जो रोड है, सेकंड जो रास्ता है, वो उसको ज्यादा क्या है, बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ता है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी. क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि जो सेकंड वाला रोड था वो ग्रासी था, उस पर घास उगा हुआ था. एंड वांटेड वियर. देखो वांटेड वियर का मतलब होता है had not been used. So it shows that actually when he compares path number 1, मतलब जो path number 1 है उस पे बहुत सारे लोग ट्रेवल किए हैं जिसकी वजह से वो रोड क्या है, वो टॉर्न है, वो टूटा हुआ है. बट when he looks at the second road which is wanted via, it shows that number of travelers on that road were very less. यानी उस रोड के ऊपर बहुत सारे लोग और लोगों ने ट्रेवल नहीं किया है. It was grassy क्योंकि वो अभी भी ग्रासी, उस पे घास उगा हुआ है. एंड देयरफॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्चुअली thinks that the second road has the better claim. तो उनको लगता है जो सेकंड रोड है शायद वो बेटर उनके लिए क्लेम हो सकता है, बेटर ऑप्शन हो सकता है. सो देयरफॉर ही कंसीडर द सेकंड रोड. दो हालांकि as for that the passing there had warned them really about the same. देखिए as for the passing there had warned them really about the same. देखिए अगर बात की जाए कि हो सकता है, अभी जो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, पॉइंट ये बोलना चाहता है, देखो वांटेड वियर यानी कि हालांकि वो कम अभी उसको यूज किया गया, हालांकि एज फॉर द पासिंग देयर मतलब हो सकता है कि अगर वो सेकंड रोड पे अभी आगे चले, if he keeps moving on the second path, अगर वो दूसरे रास्ते पे चलते रहते हैं, हो सकता है had warned them really about the same, कि हो सकता है कि बाद में जाकर उनको पता चले कि ये जो सेकंड वाला रास्ता है उसको भी इक्वली यूज किया गया है. लेकिन अभी स्टार्टिंग में जब उस पर्टिकुलर रोड को देख रहा है तो इट शोज दैट एक्चुअली इट्स अ बेटर क्लेम, राइट, rather than the first one. उनको लगता है पहले की बजाय दूसरे वाला रास्ता है वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है. लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि हो सकता है कि अगर चल के मुझे इस बात का पता चले कि ये दोनों रास्ते क्या थे, इक्वली यूज थे, लेकिन पहले देखने से लगता है कि जो सेकंड वाला रोड है उसको कम यूज किया गया है, राइट. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर सेकंड स्टेंजर. लेट्स मूव ऑन विद आवर थर्ड स्टेंजर. देखते हैं. एंड बोथ दैट हैव मॉर्निंग. देखो
and both that morning equally lay. Lay means, my dear student, बिछा हुआ होना. In leaves no step has been trodden black. एंड इट इज द टाइम ऑफ मॉर्निंग. और दोनों रोड की तरफ अगर देखता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखता है कि दोनों रोड के ऊपर क्या होता है, ले बिछे हुए होना, लीव्स, वहां पर कुछ पत्ते गिरे होते हैं दोनों रोड्स के ऊपर. नो स्टेप हैज बीन ट्रोडन ब्लैक. ट्रोडन ब्लैक मींस, माय डियर स्टूडेंट्स, मींस वॉक्ड ओवर. ट्रोडन मींस कुचलना होता है, वैसे मींस वॉक्ड ओवर. यानी ये जो लीव्स गिरे हुए दोनों रोड्स के ऊपर, मतलब दोनों रोड्स के ऊपर जो लीव्स हैं, मतलब उनको ट्रोडन ब्लैक मतलब क्या है, वो अभी उनको कुचला नहीं गया है. यानी उनके, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बोथ द रोड्स हैव नॉट बीन यूज्ड. ये बात दिखाता है कि दोनों रोड्स को अभी ट्रेवल नहीं किया गया है, क्योंकि जो लीव्स है वो बिल्कुल फ्रेश दिखाई पड़ते हैं और वो ट्रोडन ब्लैक नहीं है, उनको कुचला नहीं गया है. तो इट शोज दैट कि कुछ टाइम से दोनों रोड्स के ऊपर किसी ने भी ट्रेवल नहीं किया है. Oh, I kept the another day. Oh, I kept first for the another day. Now poet says that actually he is making a decision. A poet एक decision ले रहा है, कह रहा है कि I have kept the first for the another day. And now it means, like, instead of choosing the first path which has been traveled by most of the travelers, the poet chooses the second one which is less traveled. तो poet कहता है कि मतलब मैंने जो first road है वो किसी और दिन के लिए रख लिया है. So he chose the second way which is used by less number of travelers. वो दूसरे वाले रोड को क्या करता है, जो कि ग्रासी है, वांटेड वियर है, जिसको कम यूज किया गया है, तो उस पर्टिकुलर रोड को रॉबर्ट फ्रॉस्ट चूज करता है. तो इस पर्टिकुलर लाइन से हमें ये भी पता चलता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन एडवेंचरस, राइट, जो एडवेंचर के अंदर विश्वास रखते हैं. तो मतलब इस पर्टिकुलर लाइन से हमें पता चलता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नेचर एडवेंचरियस है, राइट, यानी वो एडवेंचर से बहुत ज्यादा क्या एडवेंचर दिखाना चाहते हैं. येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू द वे. और हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इस बात का पता है कि मतलब अगर एक रास्ते पे वो चल पड़े, उसके बाद दूसरे रास्ते पे चल पड़ेंगे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते आगे वो बढ़ते चले जाएंगे. I doubted if I should ever come back. And he knows that कि एक बार अगर किसी रास्ते पे वो चले गए तो शायद उस रास्ते पे वो वापस कभी भी ना आ पाए. Even then, he says that I kept the first rod for another day. उसके बावजूद भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैंने जो पहले वाला रास्ता है वो किसके लिए रख दिया है, दूसरे मतलब किसी और दिन के लिए मैंने रख दिया है. Therefore, he chose the second path, which is less traveled by a number of travelers. जितने भी ट्रेवलर्स हैं वो उसके ऊपर कम लोगों ने वहां पर ट्रेवल किया है. और यहाँ पर पॉइंट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अपने एडवेंचर वाले नेचर को भी शो करता है साथ के साथ. क्लियर. तो ये स्टेंजा नंबर 3 हो गया. स्टेंजा नंबर 4 देख लेते हैं. आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई. साई मतलब, साई का मतलब होता है वैसे डीप ब्रेथ. जब आप गहरी सांस लेते हो तो उसको बोलते हैं साई, मतलब आहें भरते हो. I shall be telling you this a sigh. यहाँ पे पोइट बोलता है कि मैं एक लंबे टाइम के बाद, मतलब मैंने सेकंड रोड को मैंने चूज कर लिया, एक बहुत टाइम के बाद मैं लंबी सांसें ले रहा हूँगा, आहें भर रहा हूँगा. क्यों? Somewhere ages and ages. Ages and ages का मतलब यहाँ पर हो गया एक लंबे टाइम पहले. Hence, two roads diverge in a wood because I was going through the jungle, I was going through the woods, and I found a juncture where two roads were diverged. वो कहता है कि मैं एक बार जंगल से गुजर रहा था, फॉरेस्ट से गुजर रहा था, तभी मेरे सामने दो रोड्स मुझे दिखाई पड़ते हैं और मैंने ये वाला रोड चूज किया, सेकंड वाला चूज किया. एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. और उन्होंने फर्स्ट को छोड़कर बल्कि सेकंड रोड वो लिया जो कि लेस ट्रेवल्ड है, जिसपे कम लोग चले थे. एंड दैट्स व्हाट दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. And that has made all the difference. And because he chose the second path, which was less traveled by the people, and what are the differences he has today in his life, just because he made that decision on that particular day. और जो भी उनकी जिंदगी के अंदर डिफरेंसेस हैं, जो भी अच्छा बुरा जो भी उनकी जिंदगी में डिफरेंसेस आए हैं, ये उसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने उस लास्ट टाइम ये डिसीजन लिया था कि मैं सेकंड रोड को चूज करूंगा, राइट.
So it shows that, my dear student, decision making is very, very important in our life. And whenever you make decision, you should be wise enough. आपको बड़े wise तरीके से decision को लेना चाहिए. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलता है कि जो भी मेरी जिंदगी के अंदर differences आए हैं, just because I chose that road on that particular day, and whatever I am today, just because of that decision only. It may be good, it may be bad, it may be, it may be right or it may be wrong. Whatever is happening in his life, just because of that particular decision only. उनकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, उस डिसीजन की वजह से ही हो रहा है, right? So this is all about from this particular poem. Now let us discuss about literary devices. हम इसके literary devices की बात कर लेते हैं. सबसे पहले इसकी rhyming scheme की अगर हम बात करें, तो ये पूरी poem में rhyming scheme आपका ABAAB. राइमिंग स्कीम करने के लिए आपको क्या करना होता है, आई शो यू, जस्ट वेट. देखिए, राइमिंग स्कीम के लिए आपको क्या करना होता है, ये वाला लास्ट जो होता है ना, आपको इसको चेक करना होता है. जैसे ले मैंने ए दे दिया, ब्लैक साउंड देखना होता है, राइट. ब्लैक को मैंने बी दे दिया, ले और डे मैच कर गया, वे भी मैच कर गया, और ब्लैक और बैक मैच कर गया, राइट, बी. तो ए बी ए बी, तो ये हमारा राइमिंग स्कीम रहेगा. देखें, तो ए बी हमारा राइमिंग स्कीम रहा. क्लियर. सिंबोलिज्म, देखो सिंबोलिज्म एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें कोई चीज को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां पर सिंबोलिज्म यूज कर लेते हैं. देखो, टू रोड्स व्हिच रिप्रेजेंट्स टू मोर चॉइसेस इन लाइफ. यहाँ पे दो रोड है ना, वो किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो टू चॉइसेस इन आवर लाइफ. जो हमारी दो चॉइसेस होती है उसके बारे में बता रहे हैं. तो यहाँ पे रोड्स चॉइसेस को सिंबलाइज कर रहे हैं. क्लियर. एनाफोरा कहाँ पे यूज करते हैं, आई विल शो यू, जस्ट वेट 1 सेकेंड. देखिए, एनाफोरा दिखाते हैं अभी आपको, 1 सेकेंड. देखिए, एनाफोरा क्या होता है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सी, व्हेन योर टू और मोर देन टू लाइंस बिगिन विद द सेम वर्ड. देखिए यहाँ पर एंड और एंड से जब आपकी दो या दो से ज्यादा लाइनें सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, तो उस पर्टिकुलर आपको क्या बोल सकते हैं, आप उसको बोल सकते हो एनाफोरा. क्या बोल सकते हैं, एनाफोरा. साथ के साथ देखो, जनरली क्या होता है, व्हेन पोएट मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन, जनरली वो क्या यूज करता है, कॉमा, फुल स्टॉप या पंक्चुएशन मार्क यूज करता है. तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क भी यूज किया, देखो. लेकिन जब पोएट बिना कोई फुल स्टॉप कॉमा के आगे बढ़ जाता है, तो उस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं इंजैममेंट. देखो लिखे, EMJAMBMENT, उसको हम बोलते हैं इंजैममेंट. जब पोएट नेक्स्ट लाइन में विदाउट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज किए मूव कर जाता है, देखो बहुत के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, स्टूड के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इंजैममेंट. उसको क्या बोलते हैं, हम इंजैममेंट बोल देते हैं, राइट. नेक्स्ट देख लेते हैं. देखिए, साथ के साथ आपने एनाफोरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया. एलिट्रेशन कहाँ यूज करते हैं, देखो एलिट्रेशन में क्या होता है, जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो रिपीट होता है. देखो, वांटेड वी है, तो यहाँ पे डब्ल्यू साउंड आपका रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या यूज कर लिया, एलिट्रेशन यूज कर लिया. फर्स्ट फोर, देखो यहाँ पे एफ साउंड आपका आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया. फिर आता है दो दैट यहाँ पर यानी टीएच वाला साउंड आ रहा है, तो ये भी आपका एलिट्रेशन हो गया. रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन के अंदर एक जो वर्ड होता है, एग्जैक्ट वर्ड होता है, वो क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, तो वहां पर आप रिपीटेशन बोल सकते हैं. इसे पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं, तो यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा एजेस एंड एजेस लिखा था यहाँ पर. देखो, एजेस एंड एजेस, ये वर्ड है, कंप्लीट वर्ड है जो कि रिपीट हो रहा है, तो इसको आप बोल सकते हैं रिपीटेशन. क्या बोल सकते हैं हम इसको, रिपीटेशन. साथ के साथ अगर हम देखते हैं, एक और था आपका, राइट, टू रोड्स डाइवर्स्ड. ये स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में भी यूज हुआ था और सेकंड वाले लास्ट वाले में भी हुआ, टू रोड्स डाइवर्स्ड. सो इन दिस वे वी हैव यूज्ड रिपीटेशन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, राइट. So this is all about from my side. I tried my best to simplify this form, right? Tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.